हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास एक नया चैप्टर शुरू करना है। चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है और ये कंफर्म मान के चलो एग्जाम में आना ही आना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट हर एग्जाम में इसका कहीं ना कहीं सवाल डालता है। तो कम से कम 5 से 7 नंबर की वेटेज तो अकेला ये चैप्टर होल्ड करता है और बहुत आसान है, कुछ नहीं है चैप्टर के अंदर, तो मैं ज़्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स सब लोग अपने पास रजिस्टर्स में हेडिंग डाल लो। हेडिंग डालो सब लोग अपने पास, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। लिखो, समटाइम्स while preparing books of accounts errors may be committed full stop. Such errors need to be rectified before finalizing the books of accounts. Before finalizing the books of accounts. Full stop. These errors may be located at 3 stages. अब नेक्स्ट टाइम में लिखो स्टेज 1। डैश करके लिखो, बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। अंडरलाइन कर दो इसको, नीचे लिखो, these errors should be rectified through a statement full stop. If the rectification requires a debit, then the statement will start with अच्छा, कोटेशन मार्क्स ओपन करो, लिखो 2 and if it requires credit, comma, the statement will start with कोटेशन मार्क्स ओपन करो, लिखो बाय, फुल स्टॉप। स्टेज 2, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, but before preparing the final accounts.
अंडरलाइन कर दो। देखो, इन दिस केस errors are rectified. In this case errors are rectified by passing a journal entry, by passing a journal entry. ठीक। स्टेज 3, after preparing the final accounts, after preparing the final accounts, आगे लिखो ये पता है ना क्या होता है, आई डॉट ई डॉट दैट इज। तो जब भी मैं आगे किसी भी क्लास में कभी दैट इज बोलूं, दैट इज का मतलब क्या लिखेंगे हम, आई ई। ठीक है, तो दैट इज in the next accounting period, that is in the next accounting periods। अंडरलाइन कर लो। In this case errors should be rectified, in this case errors should be rectified by passing a journal entry, by passing a journal entry, but note should be kept for, incomes and expenses account, but note should be kept for incomes and expenses account while passing the rectification entry, while passing the rectification entry। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे लिखो अपने पास टाइप्स ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक, डालो इसमें फर्स्ट पॉइंट, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल, डैश डाल के लिखो। दिस एरर इज सेड टू अकर when the accountant records a transaction, when the accountant records a transaction that does not comply with the rules of accounting, with the rules of accounting, full stop। Recording of such a transaction, recording of such a transaction does not have an impact, does not have an impact on the trial balance, on the trial balance, that is
the trial balance will tally. That is, the trial balance will tally. Example: an asset is purchased. An asset is purchased and is recorded as an expense. And is recorded as an expense, and vice versa. And vice versa. ठीक. Second point. Clerical errors. Clerical errors. These errors are committed by the clerk. These errors are committed by the clerk and are generated from improper recording of transactions. Full stop. Clerical errors are of three types. Clerical errors are of three types. नीचे डालो पॉइंट नंबर ए, एरर ऑफ ओमिशन. एरर ऑफ ओमिशन लिखो. These are those types of errors. These are those type of errors that are generated when the clerk forgets to record an entry. When the clerk forgets to record an entry. Full stop. He can either forget the entire entry. He can either forget the entire entry or a part of the entry. Or a part of the entry. Full stop. If he forgets the entire entry, comma, it is called complete omission. It is called complete omission. And if he forgets a part of the entry, and if he forgets a part of the entry, then it is called partial omission. Then it is called partial omission. Next, point number B. Error of commission. These type of errors
occur when the clerk records a debit or credit to the correct account but posts it to the wrong ledger एग्जाम्पल लिखो इसके अंदर अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं। पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट, कॉमा पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड, कॉमा कैरी फॉरवर्ड एरर्स, कॉमा डुप्लीकेशन एरर्स, कॉमा रॉन्ग कास्टिंग ऑब्लिक टोटलिंग, ठीक। अब डालो सी पॉइंट, कॉम्पेंसेटिंग एरर्स, This error occurs when one error has been compensated or neutralized by another error, ठीक है। आ जाओ, अब हम थोड़ा लिखने के बाद समझने का प्रोसेस शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम देखो क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। एरर्स तो आई थिंक सभी को समझ में आते हैं, एरर्स मतलब गलतियां। तो जब हम बुक्स बनाते हैं तो बुक्स बनाते वक्त, अकाउंट्स बनाते वक्त हमसे कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उन गलतियों को ठीक कर रहे हैं। रेक्टिफिकेशन मतलब क्या, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो उसको सुधार रहे हो, उसको ठीक कर रहे हो। तो ये चैप्टर में हम लोग ये चीज़ सीखने वाले हैं, ठीक है। अब याद करो, तुम लोग जब अपने क्लास 10th तक थे तो तुम लोग ज़्यादातर बच्चे मैथ्स लेके बैठे थे, हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पे 11th में भी लेके बैठे हो, बट 10th तक तो मैथ्स ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ी है। तो याद करो अपनी क्लास 10th 9th 8th जो भी थी, उसमें जब तुम्हें मैथ्स के सवाल दिए जाते थे तो मैम होमवर्क में देती थी कि ये सवाल घर से करके लाना, ठीक है। मोस्ट तुम करते ही थे, ठीक है। तुम्हें तो पता था हमारा तो अल्टीमेटली कुछ हो ही जाना है, तो आगे चल के करना क्या है पढ़ के, बट कुछ कुछ कर ही लेते थे, ठीक है। तो याद करो, कभी कभी जब तुम्हें मैथ्स के सवाल होमवर्क में मिलते थे और तुम करते थे, तो तुम सवाल कर रहे हो और सवाल करते करते ही तुम्हें कई बार ऐसा होता था कि करते करते ही अपनी गलती पता चल जाती थी, है कि नहीं। मतलब याद करो, बुक में क्या आंसर कैसे होता था, लास्ट के पेजेस पे पलटना पड़ता था और पीछे लिखा होता था आंसर, ऐसे कुछ था। तो कई बार ऐसा होता था
कि तुम जब गलती करते थे तो तुम्हारा जो एरर है वो क्या होता था, लास्ट पेज पलटने से पहले ही, बिफोर ओपनिंग या बिफोर चेकिंग द आंसर, तुम्हें अपना एरर खुद ही पता चल जाता था, करते करते दिख जाता था। ठीक, अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता था कि तुमने अपना पूरा सॉल्व कर दिया, तुम्हारे हिसाब से ठीक है, फिर तुम क्या करते थे, पीछे आंसर चेक करते थे और चेक करने के बाद पता चलता था कि यार आंसर तो मैच ही नहीं हुआ। यानी कि तुम्हारा एरर कब लोकेट हुआ, आफ्टर चेकिंग द आंसर। ठीक, और कभी कभी ऐसा भी हुआ होगा, याद करो, कि तुमने आंसर सॉल्व किया, अपने आप पीछे पलटा और मैच हो गया। ठीक है, तुम खुश कि भैया हो गया ठीक, बट क्या पता चला, जब तुम लेके गए टीचर के पास, टीचर के सामने जब तुमने चेक कराया तो टीचर बोलती कि तुमने आंसर गलत निकाला है। तुम कह रहे हो नहीं मैम, मैं देखो सही निकाला है। मैम कह रही है तुम्हारा आंसर तुक्के में सही आएगा, तुमने प्लस माइनस डिवाइड उटपटांग कुछ करके मैच कर दिया है। यानी कि अब कब चेक हुआ, आपको पता चला, आफ्टर चेकिंग विद द टीचर। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें अपने स्कूल में गलतियां होती थी, तो इस तरीके से स्कूल में अपनी गलतियां लोकेट करते थे। ठीक, अब कुछ ऐसा ही समझो, ऐसा ही यहां पे भी होगा। जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो अकाउंट्स में जो हमारी गलतियां हैं वो 3 स्टेजेस पर पकड़ी जा सकती हैं। पहला स्टेज होता है बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। याद करो, हमने चैप्टर अपने पास पढ़ लिया है ट्रायल बैलेंस वाला, तो हमने ट्रायल बैलेंस में सीखा यही था कि ट्रायल बैलेंस का बेसिक एम क्या है, कि अगर हमने कोई डेबिट क्रेडिट में कोई गलती करी है तो वो गलती लोकेट हो जाए। हम बेसिकली कैलकुलेशन एरर्स लोकेट करने की कोशिश करते हैं कि प्लस माइनस कोई गलती तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि कोई डेबिट साइड बड़ी होगी, क्रेडिट साइड छोटी होगी, क्रेडिट साइड बड़ी होगी, डेबिट साइड छोटी होगी, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो क्या है, ऐसे समझो सोल्यूशन है। बुक का पीछे सोल्यूशन लिखा होता ना, वो सोल्यूशन है। तो तुमने सोल्यूशन निकालने से पहले ही खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाई नहीं, जर्नल और लेजर करते वक्त ही तुमने एरर अपना लोकेट कर लिया। ठीक, दूसरा स्टेज क्या था तुम्हारा, कि तुमने आंसर पीछे से चेक किया, यानी कि अब यहां पे भी हम आंसर चेक करेंगे, यानी कि कब चेक करेंगे, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यानी कि हमने ट्रायल बैलेंस बनाई और फिर देखा अबे ट्रायल बैलेंस तो हमारी मैच ही नहीं हो रही, डेबिट और क्रेडिट साइड बराबर नहीं आ रहे। ठीक है, तो जब तक तुम्हारी ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगी तब तक तुम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट नहीं बना सकते। 11th में बनाना शुरू किया था, याद है, ट्रेडिंग पी एंड बैलेंस शीट, तो वो तब तक नहीं बना सकते जब तक तुम्हारा ट्रायल बैलेंस टैली ना हो जाए। तो ये क्या कह सकते हैं हमें कि एरर कब लोकेट हुआ है, आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट से मतलब क्या है, यहाँ पे ट्रेडिंग, पी&एल और बैलेंस शीट, उनको क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और तीसरा एरर है आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद, यानी कि तुमने फाइनल अकाउंट्स बना लिए, ट्रेडिंग, पी&एल, बैलेंस शीट बना ली, तो जब ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट बना चुके होगे तो क्या करते हो, बुक्स बंद कर चुके होते हो। जैसे तुमने घर पे भी नोटबुक अपनी बंद कर दी थी, फिर घर ले जाने के, स्कूल ले जाने के बाद टीचर ने अगले दिन बताया, नेक्स्ट डे बताया, तो यहां पे क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एरर कब लोकेट हो रहा है, नेक्स्ट डे नहीं, नेक्स्ट ईयर, आगे के सालों में एरर लोकेट हो रहा है तुम्हारा, या तो अगले साल या उसकी भी अगले 1-2 साल बाद, मतलब तुम्हारे को 2-3 साल तक एरर हो सकता है मिले ही ना, बाद में पता चल रहा है भाई मैंने तो गलत रिकॉर्ड कर लिया था। ठीक है, तो 3 स्टेजेस पे एरर हो सकते हैं। पहला स्टेज बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, दूसरा स्टेज आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बट बिफोर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, और तीसरा आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स, दैट इज नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। सर क्या ये थियरी हमारे लिए रेलेवेंट है? हाँ, ये थियरी हमारे लिए रेलेवेंट है।
क्या ये पूछी जा सकती है? जी हाँ, पूछी जा सकती है कि किन किन स्टेजेस पे आपके एरर्स लोकेट होते हैं, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर सर पहली स्टेज पे एरर मिलता है तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे, रेक्टिफाई कैसे करेंगे? तो इसको रेक्टिफाई करेंगे हम बाय पासिंग अ स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट से रेक्टिफाई करेंगे। और स्टेटमेंट में क्या करेंगे, अगर हमें रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट देनी है बाय अ डेबिट, तो हमारा जो स्टेटमेंट होगा वो स्टार्ट होगा 2 से। और अगर रेक्टिफाइंग स्टेटमेंट हमारी में जो हमें कुछ करना है वो रेक्टिफिकेशन में क्रेडिट करना है बेसिकली, तो हमारा स्टेटमेंट स्टार्ट होगा बाय से। ठीक है, तो स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का स्टेटमेंट है। अगर डेबिट करना है कुछ तो स्टेटमेंट लिखोगे 2 से, और कुछ क्रेडिट करना है तो स्टेटमेंट स्टार्ट होगा बाय से। सेम चीज, अब सेम चीज नहीं, अब अगर स्टेज 2 का एरर है, सेकेंड स्टेज का एरर है, तो सोचो, बुद्धि लगाओ, हमें एरर कब मिला? आफ्टर ट्रायल बैलेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं। ट्रायल बैलेंस कब बनेगी? जब ट्रायल बैलेंस कब बनती है? जब जर्नल और लेजर बन चुका हो, यानी कि आपने जर्नल एंट्री पास कर दी, उसकी पोस्टिंग कर दी लेजर के अंदर, तो अब यानी कि रेक्टिफिकेशन होगी थ्रू अ जर्नल एंट्री। क्यों? क्योंकि आपने जर्नल पास कर दी, आपने जर्नल गलत पास करी, उसकी गलत पोस्टिंग होगी, या फिर जर्नल ठीक करी, उसकी पोस्टिंग गलत कर दी। तो क्या हुआ, जर्नल और लेजर में कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे तो एरर है, तो अब आप उसको रेक्टिफाई करोगे कैसे? बाय पासिंग अनदर जर्नल एंट्री। ये मत कर देना, कहो कि सर पीछे वाली एंट्री को जाके डिलीट कर देंगे कंप्यूटर में, या पीछे वाली एंट्री को जाके जैसे हम नोटबुक में काट देते हैं वैसे काट देंगे। नहीं, अगर गलती हो गई है हो गई है, अब क्या करो, उसकी एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दो। ठीक है, ठीक है। और तीसरा, ये वाला एरर कब लोकेट हो रहा है? नेक्स्ट ईयर में। और क्या है, कहां पे? आफ्टर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स कब बनते हैं? लास्ट बनते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। करेक्ट, तो ट्रायल बैलेंस कब बनती है? जर्नल लेजर के बाद। यानी कि इनको भी रेक्टिफाई करना है, तो रेक्टिफाई कैसे करोगे? बाय पासिंग अ रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, अब यहां पे और यहां पे दोनों में हमें रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है, बट जब ये वाली रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे तो इनमें हमने कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। एक छोटी चीज का ध्यान रखना होता है, वो ये है कि रेक्टिफाइंग एंट्री में अगर इनकम का अकाउंट या एक्सपेंस का अकाउंट अगर हिट हो रहा है, रेक्टिफाइंग एंट्री में अगर इनकम का अकाउंट या एक्सपेंस का अकाउंट अगर हिट हो रहा है, तो फिर हम रेक्टिफाइंग एंट्री में इनकम का नाम, इनकम अकाउंट का नाम नहीं लिखेंगे, न एक्सपेंस अकाउंट का नाम लिखेंगे, हम उसी जगह पे लिखेंगे नाम P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं मैं, जब रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे तीसरे स्टेज पे, तो रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर एग्जांपल रेक्टिफाइंग एंट्री बनती है कुछ ऐसी, सेल्स डेबिट टू सस्पेंस। ठीक है, मान लो ये रेक्टिफाइंग एंट्री बनती है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला मैंने, अगर इनकम का कोई खाता है या एक्सपेंस का कोई खाता है, तो हम वो उसका नाम, इनकम अकाउंट का नाम नहीं लिखेंगे या एक्सपेंस अकाउंट का नाम लिखेंगे, उसके क्या लिखेंगे? P&L एडजस्टमेंट। तो इस एंट्री में बताओ, कोई इनकम का खाता है या एक्सपेंस खाता है? कौन सा है? सेल्स कौन सा खाता है? इनकम का खाता। तो हम सेल्स नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, बट अगर ये एरर यहां होता, सेकंड स्टेज पे होता, तब हम एंट्री करते नॉर्मल, यही सेल्स डेबिट टू सस्पेंस, ये एंट्री हम पास कर देते नॉर्मल, इसमें नहीं करना ये। ठीक है, अब सर इसमें और इसमें क्यों फर्क आ रहा है, ये हम P&L एडजस्टमेंट क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, ये हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, अभी नहीं जा रहा मैं इन डेप्थ। पहले ये दो एरर सीख लेंगे,
हमारे को अपना जब ये दो एरर से रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी आ जाएगी इन दो स्टेज के बाद, जब तीसरे स्टेज पे पहुंचेंगे अपना पता चल जाएगा, बता दूंगा मैं कि यहाँ पे ये क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एरर्स में सबसे पहला, अब एरर्स कितने तरीके के हैं, तो एरर्स हैं हमारे दो तरीके के, एरर ऑफ प्रिंसिपल और दूसरा क्लरिकल एरर्स। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल देखो तुम्हें दिख रहा है क्या बोलना चाह रहा है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, हमने जो प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के वो ही गलत लगा दिए। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है कि आपने एरर ऑफ प्रिंसिपल्स कमिट तो किए हैं बट आपका ट्रायल बैलेंस उससे फर्क नहीं पड़ता, ट्रायल बैलेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता से मतलब क्या है, ट्रायल बैलेंस आपकी मैच होती है। ठीक है, जैसे कि क्या, फॉर एग्जाम्पल तुमने खरीदा एक कंप्यूटर ऑफिस के लिए और उस कंप्यूटर को दिखा दिया अपने पास एज एक्सपेंस। ठीक है, या तुमने अपने कंप्यूटर में कोई रिपेयर करवाया और उस रिपेयर को कंप्यूटर की कॉस्ट में ऐड कर दिया, तो क्या किया हमने, अकाउंट्स में क्या फॉलो करते हैं, अगर आप असेट खरीदते हो तो उसको असेट के तौर पर रिकॉर्ड करना चाहिए ना कि एक्सपेंस। तो पहले एरर में क्या किया हमने, कंप्यूटर खरीदा उसको खर्चा मान लिया, या फिर दूसरे स्टेज में क्या किया, हमने एक रिपेयर करवाया कंप्यूटर में, यानी कि क्या किया, एक्सपेंस कमिट किया, उसको कैसे दिखा दिया, असेट की वैल्यू बढ़ा दी। तो देखो हमने क्या सीखा है कि अगर असेट होता है तो असेट को क्या करते हैं, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, और एक्सपेंस को क्या करते हैं, डेबिट ही करते हैं। असेट होता है डेबिट, एक्सपेंस भी होता है डेबिट। तो अगर मैंने कंप्यूटर खरीदा और उसको क्या कर दिया, एक्सपेंस की तरह से दिखा दिया, तो जो चीज मुझे डेबिट करनी चाहिए थी वो क्या करी, डेबिट ही करी ना, कुछ चेंज तो नहीं किया, जो चीज डेबिट होनी चाहिए थी डेबिट ही करी, बस मैंने क्या किया, कंप्यूटर अकाउंट में डालने की जगह पे एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिया, तो हुए तो दोनों डेबिट ही ना। तो ट्रायल बैलेंस को थोड़ी पता होता है कि डेबिट साइड पे आपने कौन से लेजर से अकाउंटिंग डाल रहे हो, डेबिट को तो बस ये दिखता है, डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस को इतना दिखता है कि टोटल कितना आना चाहिए। तो जो चीज डेबिट में आनी चाहिए वो कहां गई है, डेबिट में गई है। तो बताओ क्या ट्रायल बैलेंस में एरर मिलेगा, नहीं, लोकेट ही नहीं कर पाओगे क्योंकि टोटलिंग तो ठीक आएगी। ठीक, सिमिलरली इनकम को अगर आप कैपिटल एक लायबिलिटी की तरह से बुक कर लो कि इनकम मिल चुकी है, आप कह रहे हो मेरी लायबिलिटी है, या लायबिलिटी को इनकम के तौर से, कुछ लोग कह देते हैं कि सर हमने लोन लिया है बैंक से, तो सोचो लोन लिया है तो पैसा आया, इनकम हो गई, तो क्या किया लोगों ने, लायबिलिटी को इनकम मान लिया। लायबिलिटी क्या होती है, डेबिट या क्रेडिट, लायबिलिटी होती है क्रेडिट, और इनकम्स क्या होती है, क्रेडिट। तो क्या हुआ, लायबिलिटी बुक होनी चाहिए थी, कहां बुक हो गई, इनकम में, बट क्या हुआ, क्रेडिट का क्रेडिट ही हुआ ना, तो ट्रायल बैलेंस में क्या गलती मिलेगी, नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो इनको लोकेट करना आसान नहीं है, ये ट्रायल बैलेंस में आपको नहीं मिल सकते। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट है हमारे क्या, क्लरिकल एरर्स। क्लरिकल एरर्स होते हैं वो एरर्स जो एक क्लर्क कमिट करता है। क्लर्क मतलब समझ लो एक अकाउंटेंट जो बुक्स में एंट्रीज पास करता है, वो होता है क्लर्क या अकाउंटेंट। तो क्योंकि क्लर्क ऐसी गलतियां करता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लरिकल एरर्स। ठीक है, अब कैसी कैसी एरर्स करता है वो, पहला एरर करता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन मतलब मिस कर जाना, उसने एंट्री रिकॉर्ड करी ही नहीं, भूल गया एंट्री रिकॉर्ड करना, तो उसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। ये वर्ड आता है ओमिशन, ओमिट से, ओमिट का मतलब होता है मिस आउट कर जाना। तो एरर ऑफ ओमिशन हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंप्लीट ओमिशन और एक होता है पार्शियल ओमिशन। तो कंप्लीट ओमिशन एक ऐसा ओमिशन जिसके अंदर दोनों एस्पेक्ट जर्नल एंट्री के रिकॉर्ड ही नहीं हुए, दोनों एस्पेक्ट से मतलब बोथ डेबिट एंड क्रेडिट आर नॉट रिकॉर्डेड, डेबिट भी और क्रेडिट भी दोनों रिकॉर्ड नहीं हुए, तो ये मैंने बीच में डाला है प्लस। पार्शियल ओमिशन कैसा होगा, पार्शियल मतलब एक कोई, यानी कि आपने या तो डेबिट पास कर दिया या क्रेडिट पास कर दिया, या तो मतलब ये पास नहीं किया ये कर दिया, या फिर डेबिट पास कर दिया क्रेडिट पास नहीं किया। ठीक है,
अब सोच के बताना ट्रायल बैलेंस में फर्क आएगा या नहीं आएगा। तुमने ना तो डेबिट साइड डाली ना क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करी, ट्रायल बैलेंस मैच करेगी या नहीं? मैच करेगी, क्योंकि दोनों साइड ही लिखी, तो जो चीज डेबिट साइड पे नहीं है वो चीज क्रेडिट साइड पे नहीं है, तो टोटल अपना आप मैच करेगा। तो ट्रायल बैलेंस विल टैली। अगर डेबिट रिकॉर्ड के क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं किया है तो ट्रायल बैलेंस टैली करेगी या नहीं? ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। और नीचे वाले में, इसमें भी नहीं टैली होगी। ठीक है, तो शायद हम ये लिखना भूल गए थे। अगर ओमिशन के वाले में जगह है तो कंप्लीट में लिख दो कि कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली, और पार्शियल ओमिशन में कंप्लीट ओमिशन में ट्रायल बैलेंस विल टैली, पार्शियल में ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली। मुंह धो क्या जल्दी, चल जल्दी जा, ऊपर जा। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। अगला है हमारा एरर ऑफ कमीशन। तो ये एरर ऑफ कमीशन क्या है? जहां पे जो वो है हमारा क्लर्क या अकाउंटेंट बहुत ही अजीब अजीब तरीके की गलती करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एंट्री पास करनी थी, लिखना था डेबिट साइड पे, लिख दिया क्रेडिट साइड पे। ठीक है, लिखना था असेट अकाउंट में, लिख दिया लायबिलिटी अकाउंट में। ठीक, या फिर टोटलिंग गलत कर दी, टोटल आ रहा था 10,000, उसे लिख दिया 1,000। ठीक, या फिर जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं, जैसे तुम देखा होगा ना, बैलेंस कैरी डाउन को अगले साल बैलेंस ब्रॉट डाउन उतारते हैं, वो कैरी डाउन से जो ब्रॉट डाउन उतारा वो गलत उतार दिया। ठीक, कभी कभी एरर कैसा करता है कि एक पेज पे एरर, जो एक पेज पे टोटल किया वो टोटल नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड होता है। कई बार होता है कि कुछ कुछ लेजर्स में बहुत एंट्रीज होती हैं, तो एक पेज खत्म होके जब नेक्स्ट पेज पे एरर जा रहा है, नेक्स्ट पेज पे जब रिकॉर्ड कर रहा है टोटल को, वो गलत रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके के एरर्स को क्या बोलते हैं हम? एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, अब इनके अंदर बोलना कि एरर ऑफ कमीशन में टैली करेगी या नहीं करेगी बड़ा मुश्किल है, वो डिपेंड करता है किस तरह के एरर उसने कमिट किया है। ठीक है, तो ये कहना कि डायरेक्टली एरर ऑफ कमीशन में टैली करेगी या नहीं करेगी वो बहुत ही बेकार हो जाएगा। अलग अलग एरर्स का अलग अलग वो रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। तो नहीं दो क्या है ना, नेक्स्ट कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स का मतलब क्या है? एरर्स जो कॉम्पेंसेट हो रहे हो। कॉम्पेंसेट होने का मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लॉ में पढ़ते हैं हम कि हमें कोई नुकसान हुआ, तो हम उस नुकसान के लिए सामने वाले से कॉम्पेंसेशन ले रहे हैं, पैसे ले रहे हैं कि हमारे को वो नुकसान वो हो जाए, भरपाई हो जाए हमारे नुकसान की। तो बिल्कुल ऐसे समझो कि हमें एक एरर एक जगह पे कमिट किया हमने, उस एरर को कॉम्पेंसेट करने के लिए हमने कहीं और एक और एरर कर दिया। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक जगह पे डेबिट 5,000 से कम किया है, तो उसको बोलते हैं हमने 5,000 से शॉर्ट डेबिट किया। तो देखो एक तरीके से क्या हुआ, क्रेडिट साइड बड़ी होगी, है कि नहीं? 5,000 से डेबिट कम किया तो क्रेडिट साइड ज्यादा हो गई। हमने फिर कहीं और आगे चल के फिर से एक एरर किया जिसमें हमने क्रेडिट भी 5,000 से शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो हुआ क्या, पहले तो डेबिट साइड ही शॉर्ट थी, अब क्रेडिट साइड भी शॉर्ट हो गई। तो क्या हुआ, इस एरर को छुपा लिया दूसरे वाले एरर ने। तुम क्या बोलते हैं इन एरर्स को? कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। ठीक है, बताओ इस केस में ट्रायल बैलेंस टैली करेगी या नहीं? करेगी, क्योंकि एक तरफ कम हुआ तो दूसरी तरफ भी कम हो गया, बराबर हो गया। करेक्ट, तो कॉम्पेंसेटिंग एरर्स भी ट्रायल बैलेंस में नहीं लोकेट हो पाते। तो
एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंप्लीट ओमिशन और कॉम्पेंसेटिंग एरर्स ट्रायल बैलेंस में लोकेट नहीं हो सकते क्योंकि ट्रायल बैलेंस आपकी टैली करेगी। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर कंप्लीट ओमिशन एंड कॉम्पेंसेटिंग एरर्स नहीं ले सकते। हाँ, पार्शियल ओमिशन लोकेट हो सकता है। पार्शियल ओमिशन आपको ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा मतलब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करेगी तो आपको पता चलेगा कुछ गलती है। एरर ऑफ कमीशन का कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एरर्स होते थे, तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एरर उस हिसाब से ट्रायल बैलेंस रिफ्लेक्ट करेगी आपकी। ठीक है, तो ये हो गए हमारे तीन मतलब चार एक्चुअली में टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, दो, बस दो के अंदर सब कैटेगरी में तीन आ जाते हैं। ठीक है, क्या ये एग्जाम में पूछा जा सकता है? जी हाँ, अगर इंस्टीट्यूट को तुमसे मजे लेने हैं तो किसी टाइम 5 नंबर का वो तुम्हें ये दे देंगे और कहेंगे इसको बता दो, या ये कह देंगे कि ये और ये एक्सप्लेन कर दो और 5 नंबर ले जाओ, 7 नंबर ले जाओ, जो भी है। तो वो तुमसे हो सकता है जो सवाल हैं वो पूछे ही ना। ठीक है, चलो अब हम अपने पास धीरे धीरे हल्के हल्के सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है। हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ राम एंड कंपनी। तो इसमें तुम्हें दिख रहा होगा 7 तरीके के एरर्स दिख रहे हैं। ठीक है, अब 7 एरर्स हैं तो हम क्या करेंगे, इसको मान के चलेंगे कि ये स्टेज 1 के एरर हैं। क्या मान के चलेंगे? स्टेज 1 के एरर हैं। स्टेज 1 के एरर क्या करते थे? बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस होते थे वो, और इनको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? बाय पासिंग अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या करेंगे? अगर कुछ डेबिट करना है तो स्टेटमेंट स्टार्ट होगा 2 से, क्रेडिट करना है तो स्टेटमेंट स्टार्ट होगा बाय से। ठीक है, ये सवाल तुम्हारे ICAI के मॉड्यूल का है, CNC का जो मॉड्यूल है उसका सवाल है ये। ठीक है, तो हम इसको अपने पास पिक करेंगे एज स्टेज 1 एरर। ठीक है, तो देखो, अच्छा एक दो चीजों का मतलब समझ लो पहले। अगर वर्ड लिखा है कास्ट या लिखा है कास्टेड या कास्टिंग, तो जो वर्ड होता है कास्ट या कास्टिंग, इसका मतलब होता है टोटल या टोटलिंग। ठीक है, टोटल या फिर टोटलिंग। अच्छा, अगर वर्ड लिखा है अंडर कास्ट, तो इसका मतलब क्या है? अंडर कास्ट, शॉर्ट टोटलिंग। लिख लो ये चीजें। ठीक है, अगर वर्ड लिखा है ओवरकास्ट, तो इसका मतलब हो गया ओवर टोटलिंग। ठीक है, तो कास्ट का मतलब क्या है? टोटल लगाना। अंडर कास्ट का मतलब क्या है? टोटल कम लगाया। जहां टोटल 10,000 होना चाहिए था टोटल लिख दिया तुमने 1000। ओवर कास्ट का मतलब क्या है? टोटल ज्यादा दिखा दिया। जहां 10,000 लिखना था तुमने वहां पे 1,00,000 लिख दिया। ठीक, अच्छा अगर कहीं पे लिखा है वर्ड पोस्टेड या फिर चार्ज्ड, तो इसका मतलब है एरर हुआ है ओनली इन वन अकाउंट। तो वर्ड लिखा हो पोस्टेड, चार्ज्ड, तो एरर सिर्फ एक ही अकाउंट में हुआ है। ठीक है, या अगर लिखा है पोस्टेड या डेबिटेड टू या क्रेडिटेड टू, ठीक है, मतलब पोस्टेड नहीं, अगर लिखा है सिर्फ डेबिटेड टू या क्रेडिटेड टू, तो भी एरर इन वन अकाउंट है। डेबिटेड टू या लिखा है क्रेडिटेड टू, तो भी एरर क्या है? इन ओनली वन अकाउंट। ठीक, अच्छा अगर लिखा है एंट्री हैज नॉट बीन पोस्टेड टू कैश बुक,
अगर लिखा है it has not been posted to the cash book, it has not been recorded in the cash book, then it means complete omission. कंप्लीट समझते हैं ना, डेबिट रिकॉर्ड हुआ है ना क्रेडिट रिकॉर्ड हुआ है। देखो कैश बुक जो होती है वो हमारी मेन बुक ऑफ अकाउंट होती है, प्रिंसिपल बुक होती है बोलते हैं। अगर कैश बुक कोई चीज रिकॉर्ड नहीं हुई तो वो कहीं भी रिकॉर्ड नहीं हुई, ना डेबिट साइड पे ना क्रेडिट साइड पे, ठीक है। बट सवाल तुमसे कभी कभी पंगे भी लेगा। कैसे? वो लिखेगा इट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द कैश बुक बट हैज बीन पोस्टेड टू दिस अकाउंट, कोई भी अकाउंट का नाम लिख देगा। तो तुमसे क्या ले रहा है पंगे, कैसे? क्या बोल रहा है इट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू कैश बुक, तुम क्या मान लोगे? कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ मतलब कहीं नहीं हुआ। बट सवाल आगे लिख रहा है कि भैया इट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू कैश बुक बट हैज बीन डेबिटेड टू या हैज बीन पोस्टेड टू दिस अकाउंट, यानी कि कैश बुक में वैसे तो नहीं रिकॉर्ड हुआ, दोनों नहीं रिकॉर्ड हुए, बट जिसको उसने बोल दिया उसमें हो चुकी है एंट्री, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि सवाल में क्या लिखा है, नॉट बीन पोस्टेड टू कैश बुक खत्म, या लिखा है नॉट बीन पोस्टेड टू कैश बुक बट डेबिटेड टू या बट क्रेडिटेड टू दिस एंड दिस अकाउंट। तो फिर जिसका नाम लिख दिया कि उसमें हो चुका है, यानी कि फिर वो हो चुका है, दूसरी तरफ नहीं रिकॉर्ड हुआ है। क्लियर है? चलो तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, how would you rectify the following errors in the books of राम एंड कंपनी। तो हम मान के चल रहे कौन सा एरर है, स्टेज का स्टेज 1, यानी कि स्टेटमेंट से रेक्टिफाई करेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, द टोटल टू द परचेजेस बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 100 रुपीज। तो परचेजेस बुक का टोटल क्या किया, अंडरकास्ट। अंडरकास्ट मतलब कम दिखाया, यानी कि परचेजेस क्या होनी चाहिए थी, 100 रुपए से ज्यादा क्या होनी चाहिए थी, ज्यादा डेबिट या ज्यादा क्रेडिट। परचेज होती है क्या, एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होना चाहिए, डेबिट। तो परचेज 100 से ज्यादा डेबिट होना चाहिए था, क्या हुआ, नहीं। तो अब कर दे, तो क्या करना है, अब डेबिट करें क्रेडिट करें, अब डेबिट करें। तो डेबिट करें तो स्टेटमेंट से स्टार्ट करें, 2 से। तो देखो सवाल ने पूछा क्या, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर। तो पहले एक्सप्लेनेशन दोगे कि भैया क्योंकि परचेज बुक 100 रुपए से कम टोटल की गई है, तो 100 रुपए से हम पहले डेबिट करेंगे, फिर उसका हम स्टेटमेंट लिख के दिखाएंगे, ठीक। तो डालो यहां पे आंसर, फर्स्ट का फर्स्ट लिखो, परचेजेस अकाउंट शुड बी डेबिटेड, परचेजेस अकाउंट शुड बी डेबिटेड with ₹100, with ₹100, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में आओ, अब हमने देखो डेबिट करना तो स्टेटमेंट किससे स्टार्ट करें, 2 से। तो कोटेशन मार्क्स ओपन करो, लिखो 2 अंडर कास्टिंग ऑफ परचेजेस बुक, 2 अंडर कास्टिंग ऑफ परचेजेस बुक ₹100। कोटेशन मार्क्स बंद कर दो। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखते क्या कह रहा है, रिटर्न्स इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय ₹50। रिटर्न्स इनवर्ड कौन सी होती है, सेल्स रिटर्न। रिटर्न्स इनवर्ड होता है हमारा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को कह रहा है अंडरकास्ट किया, अंडरकास्ट मतलब टोटल कम दिखा है। तो सेल्स रिटर्न बताओ क्या करना चाहिए, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, क्योंकि सेल्स क्या होती है, क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न डेबिट। तो सेल्स रिटर्न डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो पहले वही एक्सप्लेनेशन देंगे। लिखो सेकंड पॉइंट में, रिटर्न्स इनवर्ड शुड बी डेबिटेड विद ₹50। रिटर्न्स इनवर्ड शुड बी डेबिटेड with ₹50, फुल स्टॉप। अब नेक्स्ट लाइन में आओ, कोटेशन मार्क्स ओपन करो, 2 अंडरकास्टिंग
of returns inward book, undercasting of returns inward book, ₹50. Third point, a sum of ₹250 written off as depreciation machinery has not been debited to depreciation account. बताओ, एक जगह पे एरर, एक अकाउंट में गलती है या दो अकाउंट में गलती है? एक अकाउंट में। क्यों, कैसे पता चला? लिखा है ना हैज नॉट बीन डेबिटेड टू, ये मैंने लिखवाया था अभी कि अगर लिखा है वर्ड डेबिटेड टू तो मतलब एरर इन ओनली वन अकाउंट। तो कह रहा है कि इट हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए था, नहीं लगाया, मतलब डेप्रिसिएशन क्या करना चाहिए? डेबिट क्रेडिट? डेबिट। डेप्रिसिएशन क्या है हमारे लिए? एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्या होते हैं? डेबिट। तो वो डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, तो कर देते हैं। लिखो थर्ड पॉइंट, पहले एक्सप्लेनेशन लिखो। डेप्रिसिएशन अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद ₹250। डेप्रिसिएशन अकाउंट should be debited with ₹250। फुल स्टॉप। बताओ स्टेटमेंट किससे स्टार्ट होगा? 2 से। तो 2 हमने क्या किया? मिस कर दिया ना, ₹250 लिखना, तो क्या बोलेंगे? 2 ओमिशन इन पोस्टिंग। मिस आउट कर गए ना, तो मिस आउट को क्या बोलते हैं? ओमिशन। तो 2 ओमिशन इन पोस्टिंग in depreciation account, in depreciation account 250। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है? अ पेमेंट ऑफ ₹75 फॉर सैलरीज टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरीज अकाउंट। पोस्टेड लिखा है तो कितने जगह पे गलती? एक ही जगह पे गलती। तो क्या कह रहा है? सैलरी हमने दी ₹75 मोहन को, हमने किया क्या? सैलरी अकाउंट में 2 बार पोस्ट कर दिया। 2 बार पोस्ट करने से मतलब क्या है? सैलरी अकाउंट 2 बार क्या हुआ? डेबिट या क्रेडिट? 2 बार डेबिट हो गया, तो अब सुधारोगे कैसे? 1 बार क्रेडिट करके। करेक्ट। किसको? सैलरी अकाउंट को। लिख दो। थर्ड पॉइंट, सैलरी अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, सैलरी अकाउंट should be credited with ₹75, with ₹75। Fifth point, the total of bills receivable book of 1500 has been posted to the credit of bills receivable account। बिल्स रिसीवेबल क्या है हमारे लिए? असेट। असेट क्या होते हैं? डेबिट। तो कह रहा है 1500 रुपए BR बुक का टोटल था, इसको हमने पोस्ट कर दिया कहां पे? क्रेडिट साइड पे, बिल रिसीवेबल के। मतलब क्या करना चाहिए था? डेबिट करना चाहिए था, हमने क्या कर दिया? क्रेडिट करना चाहिए, कर दिया। अब क्या करें? डेबिट कर दें। करना क्या चाहिए था? डेबिट करना चाहिए था, कर क्या दिया? क्रेडिट। तो अब क्या करोगे? डेबिट कर दोगे। कितने से? बराबर हो जाएगा। तो एक बार करें। देखो मैं तुम लोगों से आंसर निकालता हूं, ठीक है? तुम यहां खड़े हो, ठीक है? यहां पे तुम खड़े हो, मैंने तुमसे क्या कहा कि तुम इस साइड पे आ जाओ, ठीक है? बट मैंने तुमसे क्या कहा? फॉर एग्जांपल ये देखो, तुम्हारे लिए ये कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड, राइट साइड? तुम जिस पोजीशन में तुम खड़े हो, ये तुम्हारे लिए कौन सी साइड है? लेफ्ट साइड है, ठीक है? क्योंकि ये रही तुम्हारी आंखें। मैंने तुमसे क्या कहा? किस साइड पे आ जाओ? लेफ्ट साइड पे आ जाओ। तुम्हारे राइट लेफ्ट खराब है, तुम्हारा यहां का राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हिला हुआ है। तुम कहां आ गए? इधर आ गए। ये कौन सी साइड हो गई? राइट साइड हो गई।
मैं कह रहा हूं अबे मैंने तुमसे कहा कि तुम लेफ्ट साइड पे आ जाओ, तुम कहां गए? राइट साइड पे। तो अब राइट साइड पे आने के लिए कितने कदम लोगे? जहां पे मैं तुम्हें बुला रहा हूं लेफ्ट साइड पे, वहां आने के लिए कितने कदम लोगे? 2, क्योंकि अगर एक कदम लोगे तो वापस कहां होगे? ओरिजिनल पोजीशन पे आओगे। फिर एक कदम और लोगे तब कहां होगे? लेफ्ट साइड पे। अब यही चीज मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा था कि डेबिट साइड पे आना, तुम कहां चले गए? क्रेडिट साइड पे चले गए। तो अब मैं कह रहा हूं वापस आओ जहां मैंने बुलाया था। तो क्या करोगे? 2 बार आओगे ना, 2 कदम लोगे ना। तो यहां पे बताओ, तुम 1500 से तुम्हें क्या करना चाहिए था? डेबिट। तुमने क्या कर दिया? 1500 से क्रेडिट कर दिया। तो कितने से डेबिट करोगे अब? 2 बार करोगे, मतलब 3000 से करोगे। आगे समझ? लिखो, बिल्स रिसीवेबल बुक शुड बी डेबिटेड, बिल्स रिसीवेबल बुक शुड बी डेबिटेड with rupees 3000। तो स्टेटमेंट किससे स्टार्ट होगा? 2 या बाय? 2। लिखो, कोटेशन मार्क्स ओपन करो, लिखो 2। रॉन्ग पोस्टिंग, 2 रॉन्ग पोस्टिंग इन BR अकाउंट, wrong posting in BR account rupees 3000। नेक्स्ट, छठा पॉइंट कह रहा है एन अमाउंट ऑफ रुपीज 151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक हैज बीन पोस्टेड एज 115। कह रहा है एक अमाउंट था 151 रुपए का, क्या किया था उससे? 151 की हमने क्रेडिट सेल करी थी हरी को, करेक्टली एंटर किया गया है सेल्स बुक में, इट हैज बीन पोस्टेड एज 115। तो पहली चीज तो सोच के बताओ, हमने हरी को सेल्स करी 151 रुपए की उधार पे, इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? 151 रुपए की सेल्स करी हरी को, इसकी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए? नालायक। हरी टू सेल्स, सेल्स हमारे लिए इनकम है, इनकम होती क्रेडिट। हरी को उधार बेचा, हरी बना हमारा डेटर, डेटर एक असेट है, असेट होगा डेबिट। तो हरी डेबिट टू सेल्स 151 ये होनी चाहिए थी, लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। अब वो क्या कह रहा है? इट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, मतलब सेल्स में क्या किया है? ठीक किया है, यानी कि इसको टू सेल्स 151 करना था, 151 ही किया। बोल क्या रहा है? इट हैज बीन पोस्टेड एज 115, यानी कि अगर सेल्स में ठीक किया है तो गलती कहां करी है? हरी में। और हरी में क्या कर दिया? हरी में डेबिट कर दिया 115। ठीक है, यही तो लिखा सवाल ने, करेक्टली एंटर द सेल्स बुक। तो फिर गलती कहां है? फिर हरी के अंदर कोई गए। तो बताओ, हरी इतने से डेबिट होना चाहिए था, हरी इतने से डेबिट हो गया, तो क्या करें? बचे हुए अमाउंट से डेबिट कर देंगे, क्योंकि 151 से डेबिट होना चाहिए था, 115 से तो हो ही चुका है, जो बच गया डेबिट और कर दो। तो लिखो, हरी अकाउंट शुड बी डेबिटेड, हरी अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद रुपीज 36, क्योंकि डिफरेंस क्या है? 36 का। स्टेटमेंट किससे स्टार्ट होगा? 2 या बाय? 2, क्योंकि डेबिट कर रहे हो। तो लिखो 2 रॉन्ग पोस्टिंग इन हरी अकाउंट, 2 रॉन्ग पोस्टिंग इन हरी अकाउंट रुपीज 36। और लास्ट, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश रुपीज 25 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। कह रहा है
हमने 25 रुपए का सतीश को डिस्काउंट दिया, इसको कहाँ नहीं डाला, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक। तो यानी कि हमने क्या सीखा था, अगर एंट्री कह रहा है इट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू कैश बुक, तो इसका मतलब क्या है, कंप्लीट ओमिशन है। आगे कुछ लिखा है क्या सवाल में, कह रहा है इट हैज बीन पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। तो क्या ये इंस्टीट्यूट ने सीधा सवाल दिए, पंगे लिए, पंगे लिए। नॉट पोस्टेड टू कैश बुक बोल भी दिया, साथ में क्या बोल दिया, पोस्टेड टू द पर्सनल अकाउंट। करेक्ट। तो बुद्धि लगाओ, तुमने सतीश को डिस्काउंट दिया है 25 रुपए का, तुम्हारे को खर्चा हो रहा है, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, डिस्काउंट दिया सतीश को 25 रुपए का, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सतीश। ठीक, उसने क्या बोला, इट हैज बीन पोस्टेड टू हिज पर्सनल अकाउंट, उसका जो पर्सनल अकाउंट तुमने खोल रखा है उसमें हो गई है, यानी कि डिस्काउंट अलाउड टू सतीश करनी चाहिए थी, टू सतीश कर चुके हो, क्या नहीं करा, डिस्काउंट अलाउड नहीं करा, तो अब वो करना है, यानी कि सिर्फ डिस्काउंट अलाउड में नहीं होना था ना। तो लिखो क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे, क्रेडिट, डेबिट। लिखो डिस्काउंट अलाउड शुड बी डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड शुड बी डेबिटेड with ₹25, with ₹25, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में, टू omission in posting, to omission in posting ₹25, ₹25। ठीक है, तो ये है स्टेज 1 का है। देखो सवाल ने कुछ नहीं बोला, सवाल ने सिर्फ इतना बोला रेक्टिफाई कैसे करोगे। अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो हम किस स्टेज का एरर मानेंगे, अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाए तो बताओ किस स्टेज का एरर मानेंगे, नहीं, स्टेज 2 का एरर मानोगे। अगर सवाल स्पेसिफिकली बोले कि आपको इसको रेक्टिफाई करना है बाय पासिंग अ स्टेटमेंट, तब तुम स्टेटमेंट के थ्रू करोगे, अदरवाइज अगर इस तरीके से बोल रहा है तो तुम्हें रेक्टिफाई करना पड़ेगा कैसे, स्टेज 2 का एरर यानी कि जर्नल एंट्री से करना पड़ेगा। ठीक है, बताओ ना यहां कहां लिखा है कि स्टेज 1 का एरर है या स्टेज 2 का एरर, कहां लिखा है, हाउ वुड रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स बोल दिया और नीचे एरर्स दे दिए। पता है तुम्हें कौन सा स्टेज का एरर है, नहीं, तो हमेशा मान के चलोगे कौन सा एरर है, स्टेज 2 का एरर है। ये बात नोट में लिखवा दूं, लिखवा दूं, लिख लो अपने पास नोट में। इफ द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई, इफ द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई द स्टेज ऑफ एरर, does not specify the stage of error, then we will assume it, as stage 2 error, as stage 2 error, and rectify it by passing a journal entry, by passing a journal entry। हाँ, क्योंकि स्टेज 1 का एरर के क्वेश्चन नहीं है इसमें, इसलिए से स्टेज 1 का एरर मान के सॉल्व किया है। एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाएगा तो हम मान के चलेंगे स्टेज 2 का एरर और जर्नल एंट्री से इसको रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, अब स्टेज 2 एरर और स्टेज 3 एरर्स अगली क्लास में करते हैं, जहां पे हम जर्नल एंट्रीज के थ्रू करना शुरू करेंगे। ठीक है, अभी तुम्हारा एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि घर जाना है और तुम्हें प्रैक्टिस करनी है जर्नल की और लेजर की। ठीक है, क्योंकि अगर जर्नल लेजर नहीं करने आते तो तुम भूल जाओ कि तुम्हारे को इसके फ्री के 5 नंबर मिलेंगे। ये सच बता रहा हूँ, फ्री के 5 नंबर। जब हम प्रैक्टिस करने लगेंगे तुम कहोगे हाँ यार इसमें तो कुछ था ही नहीं, हम लोगों को स्कूल में कराते थे, हमें समझ नहीं आता था, जबकि कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर। बट इस चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ इतनी है कि तुम्हें जर्नल एंट्री आनी चाहिए और लेजर पोस्टिंग आनी चाहिए। तो घर जाओ और आज ढंग से इसकी प्रैक्टिस कर लेना जर्नल एंट्री की। ठीक है, चलो जी, तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।